Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to a live and interactive 6 days online training program on robotics and artificial intelligence in education. You're watching us live on PME Vidya channels 6 to 12 and also on our YouTube handle NCERT Official. Well, under this program, we'll be learning about the importance of AI and robotics and how this combination is in alignment with the recommendations and policy objectives of NEP 2020. Well, yesterday we had an inaugural session where we talked about its concept, need and scope. We also focused on policy perspective regarding the same. And today on day 2, the topic that we are taking up is robotics and artificial intelligence, what every teacher should know. So it's going to be teacher-centric session today, but as we have already mentioned that this session is open to all, be teachers, teacher educators, parents, students, everybody has a right to know what is the future of artificial and robotics, artificial intelligence and robotics in education and how it is going to change the dynamics when it comes to content delivery, when it comes to competency development, when it comes to promoting inclusivity, equity and equality in education. So we'll be focusing on all these important points. I'm sure you must be having a lot of questions. So please feel free to get in touch with us. Our phone number is 8800440559. We also have a dedicated email ID for you, that is diksha.training@ciit.nic.in, and on our YouTube handle NCERT Official also you can send us your questions, suggestions and feedback. हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखें in every nook and corner of the country. Let's make this happen और ये प्रोग्राम सबके लिए बहुत ज़्यादा important है. Okay. सब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जितने भी टीचर्स हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, उनका एम्पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो तभी एम्पावर्ड होंगे जब उनको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी. दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन ओनली. और सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक असेसमेंट भी होगा. आफ्टर द 6 days सेशन वी आर गोइंग टू अरेंज एन असेसमेंट फॉर यू. अगर आप उस असेसमेंट में 70% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दीक्षा पोर्टल. रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट एवरी टीचर शुड नो. आज हमारा दूसरे दिन का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं और मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी. वी हैव विद अस our guest, Dr. Praveen Bobby Binja. Ma'am is Associate Professor and Program Coordinator from CIET NCERT. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Thank you. And we also have a special guest with us, Ms. Payal Rajpal. Ma'am is Director Robotics India. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Thank you, namaskar. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है that this program is brought to you by CIET NCERT in collaboration with Robotics India. और जैसे कि आपको कल बताया था that AI India Impact Summit 2026 is also going on और ये ट्रेनिंग सीरीज उसके साथ coincide कर रही है. It's a wonderful opportunity to gain the maximum benefit of this series along with some practical suggestions and the insights that we're having from industry experts at the moment. तो चलिए अभी सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने टॉपिक को डिकोड करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं. इसी डायरेक्शन में हम अपने सेशन को भी इंक्लूसिव बना रहे हैं. वी हैव आवर ISL इंटरप्रेटर्स विद अस. वी हैव विद अस मिस नीतू एंड मिस सोनल. दे विल जॉइन अस टर्न बाय टर्न फॉर द सेशन. मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट एवरी टीचर शुड नो. क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक है, आज के टीचर्स एम्पावर होंगे और ट्रेन होंगे तभी वो फ्यूचर के टीचर्स को ट्रेन कर पाएंगे. लेकिन उनके लिए सब जानना क्यों ज़रूरी है? AI समझ आता है बट अब रोबोटिक्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन. सो डॉक्टर प्रवीण प्लीज़ आप हमें बताएं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कि टीचर्स पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, हम उनको क्या जानना चाहिए? थैंक यू हरप्रीत क्वेश्चंस के लिए. सभी दर्शकों को मेरा दोबारा नमस्कार. और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आज हम दूसरे दिन में हैं, दूसरे चरण में, कल हमने डिस्कस किया पॉलिसी पर्सपेक्टिव या पॉलिसी क्या कहती है जो नई टेक्नोलॉजियों के लिए. तो आज हम चर्चा करेंगे ये रोबोटिक्स और AI टेक्नोलॉजी है और जितने भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आज हमारे टीचर्स को इसमें क्या जानना चाहिए और क्यों जानना चाहिए. ये नई टेक्नोलॉजी कैसे उनको टीचिंग लर्निंग या पर्सनल या प्रोफेशनल लर्निंग में कैसे सपोर्ट करेंगे.
तो जैसा कि हम जानते हैं हर दिन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं तरीके में शॉक करती है. बिल्कुल. एवरी डे द टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस आर शॉकिंग. And we teachers are struggling how we integrate in our teaching, learning and assessment practices. And what are the consideration of this technology कि मैं अगर अपने क्लास में लेके आती हूँ या अगर लेके आता हूँ तो मेरे बच्चों को कैसे ये सपोर्ट करेगा लर्निंग के लिए, या कैसे हमारे जो लर्निंग इन्वायरमेंट को जो क्लासरूम लर्निंग इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा. जैसे कि हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी इज मियर अ टूल, इज जस्ट गोइंग टू सपोर्ट अ टीचर. Just going to facilitate a teacher is not about to replace a teacher and you not about to replace the student. अगर मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि ऑडियो मीडिया आई थी, ऑडियो या वीडियो, तो ऑडियो और मीडिया आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि टीचर्स के प्लेस जो क्लासरूम में ख़त्म हो गई, टीचर की आवाज़ ख़त्म हो गई या बच्चे की आवाज़ वहाँ पर सप्रेस हो गई. नहीं, ऑडियो वीडियो जो मीडिया आई थी वो आज भी हमारी क्लास में है और आज भी हमारे टीचर्स यूज़ कर रहे हैं. तो हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, जहाँ हम टीचिंग एड की भी बात करते हैं, तो ये टीचिंग लर्निंग एड हो गए हैं या फिर हमारे जो लर्निंग प्रोसेस में जो स्टिमुलस होते हैं उस स्टिमुलस को स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है. यानी कि अगर हम कुछ भी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे कम्प्लेक्स कंसेप्ट होते हैं जो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, या फिर बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं जिसको हमें इमेजिन करनी होती है, उसको समझना पड़ता है, तो हम उसको क्लास में एज ए टीचर हम नहीं समझा पाते हैं. वहाँ टेक्नोलॉजी आती है बच्चों को समझाने के लिए कि आप कैसे इस सिंपल चीज़ों को समझ सकते हैं या कम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकते हैं. तो दिस इज़ द वे वी आर इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने कहा कि एवरी डे दिस न्यू इनोवेशंस टेक्नोलॉजी आर शॉकिंग अस. क्या पता आज हम आपके सामने रोबोटिक और एआई के बारे में बात करते हैं, जैसे एआई समिट हो रही है, ऐसा ना हो कि कल हमें कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ जाए या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाए. तो ये टीचर्स को नई नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही है उनको समझना ज़रूरी है. जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसको क्लास में लेके नहीं आ पाएंगे. तो ये समझना ज़रूरी है कि कैसे मेरी कैपेसिटी को, मेरी पर्सनल लर्निंग को या मेरी प्रोफेशनल लर्निंग को ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करेगी. जैसे कि आज की टॉपिक है रोबोटिक्स और एआई. तो रोबोटिक्स और एआई के बारे में टीचर्स को क्या जानना चाहिए? ये रोबोटिक्स है क्या? तो रोबोट या रोबोटिक्स नई कंसेप्ट नहीं है. आज से 20 साल पहले भी हम रोबोटिक्स के बारे में बहुत बात करते थे, पर रोबोटिक्स जो अक्सर हम इस चीज़ को हायर एजुकेशन या इंजीनियरिंग डिज़ाइन या फिर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए यूज करते थे, ना कि हम स्कूल लेवल पे लेके आते थे. पर अभी हम रोबोटिक को कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं कि हम स्कूल में इसको कैसे लेके आए. जैसे कल प्रोफेसर बेहरा, हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर इंदु कुमार ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्यों आज हमें बच्चों को एक एक्सपीरियंस और स्किल बेस्ड लर्निंग की ज़रूरत पड़ रही है. क्योंकि अभी जो एरा है, जो एज है एआई की और एरा है स्किल की, वो मशीन स्किल है या आपका टेक्निकल स्किल है, ये सारे स्किल हमें एज ए टीचर्स बच्चों को बताने हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो पाए. तो ये सारे टेक्निकल स्किल्स जो हैं और जो अपकमिंग स्किल है, ये बच्चों को हमें बताना है और कल के लिए हमें तैयार करना है. जैसे कि हम जानते हैं टीचर्स ही वो रोल प्ले कर सकते हैं कि कल का भविष्य कैसा बनेगा या देश का भविष्य कैसा होगा. तो ये टीचर्स को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि रोबोटिक्स है क्या और रोबोटिक्स के साथ एआई है क्या. जैसे मैं और एक चीज़ बताऊंगी कि आने वाले समय में हमें नए स्किल के बारे में जानना ज़रूरी होगा. कल तक हम बात करते थे, आज से 5 साल पहले या फिर कुछ समय पहले हम बात करते कि बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए और बेसिक लिटरेसी होती थी रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. अगर आपके पास रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक स्किल है मतलब आप स्किल हो गए हो, तो आपको किसी तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी या कैरियर स्कोप आपको बहुत आसानी से मिल जाती थी. पर अभी ये 3 स्किल सेट के पास साथ आपको और 3 स्किल लेके आना है और वो पहला स्किल है वो टेक्निकल स्किल. वो टेक्निकल स्किल या टेक्नोलॉजिकल स्किल वो है या टेक्नोलॉजी लिटरेसी वो है कि आप मशीन को कैसे समझेंगे कि मशीन कैसे काम करता है या टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, वो हार्डवेयर कैसे काम करता है, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है. ये मशीन जब ये हमारे पास हमारे बीच में आ गए हैं तो उसके साथ ही मशीन अपने साथ नई चीज़ें लेके आई, वो डेटा लिटरेसी. तो जो दूसरी तरह की जो लिटरेसी है वो है डेटा लिटरेसी. आप देखेंगे देयर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन इन
इन आवर लाइफ। Yes. तो हर दिन आपके हाथ में, आप कहीं भी जा रही हो, मोबाइल फ़ोन हो चाहे कोई भी डिजिटल डिवाइसेस हो या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करे, देयर इज़ अ टाइड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा को रिट्रीव करना, कैसे आप उस डेटा को रिट्रीव करके इंटरप्रेट करके कैसे आप अपने क्लास में अपने पर्सनल लर्निंग के लिए या प्रोफेशनल लर्निंग के लिए कैसे यूज करेंगे। तो टीचर्स शुड नो व्हाट इज डेटा लिटरेसी एंड द नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन लिटरेसी। हम आगे के सेशन में चर्चा करेंगे और आज हमारे AI समिट में भी इसी चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है, एथिकल यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, who make it is ethical? So we human, we teachers, we teacher educators, we the stakeholders should make ethical use of this technology. So how we will decide this technology we can be used ethically and this not going to harm our society या हमारे आसपास की जिंदगी है या हमारी लाइफ को कैसे टेक्नोलॉजी हार्म ना करे, इसकी समझ ज़रूरी है। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टेक्नोलॉजी को क्रिएट ह्यूमन ने किया है। तो ह्यूमन शुड नो, द टीचर शुड नो द क्रिएटिविटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आप कैसे इसको क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे, लर्न करेंगे, रीलर्न करेंगे। तो वंस यू आर क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग समथिंग विद द टेक्नोलॉजी, द नेक्स्ट वन इज कनेक्शन। तो जो भी क्रिएशन किए हैं वो आप लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट क्या करेंगे, कौन सी डेटा को हमें कम्युनिकेट करने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है। सो व्हेन this we doing the communication, actually you are restoring the moral and the values in the society कि हम जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे समाज में हमारे कल्चर है, हमारे एथिक्स है, हमारे प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को कैसे हम रिस्टोर कर रहे हैं या किस तरह से उसको हम सस्टेन कर रहे हैं इसके थ्रू। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। सो rather than your reading, writing, arithmetic, this three kind of literacy is important. That is the technological skill, that the data skill, as well as the human skill. Because when we are blending that humanistic approach with the technology, तो इट्स नॉट लाइक दैट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस अ टीचर और द ह्यूमन, ऐसा नहीं है। तो टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन की जो ग्रोथ है, उसकी सस्टेनेबिलिटी है, वो पैरेलल चलती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, हम टेक्नोलॉजी को कितना काम करा सकते हैं और कैसे हमारी इस एफिशिएंसी को, हमारे स्किल को आप स्किल कर सकते हैं, रीस्किल कर सकते हैं। तो ये तीन, आज हम लोग दूसरे दिन के प्रोग्राम के बाद बाकी हमारे 4 दिन के जो प्रोग्राम होंगे, आप इसमें ये समझेंगे कि हम कैसे नई नई टेक्नोलॉजी, चाहे AI हो चाहे रोबोटिक हो, आने वाले समय में कुछ और भी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, तो हम टीचर्स इसको कैसे रीपर्पज करें हमारे क्लासरूम के टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस। एब्सोल्युटली मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक पेडागोजिकल जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो नॉलेज, उसको ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को क्लासरूम के हिसाब से अलाइन करना है, उसे पर्सनलाइज करना है। एंड यू राइटली सेड दैट वी नीड टू learn something, we need to relearn something, and we need to unlearn something as well, क्योंकि हमें ट्रेडिशनल मोड से आगे बढ़ना है। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। सो एवरी टीचर मस्ट नो दैट दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ थ्रेट टू योर जॉब, दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर स्किल्स, इट इज़ देयर टू इन्हांस योर प्रोडक्टिविटी, इन्हांस योर एफिशिएंसी, ताकि आप स्टूडेंट्स को तैयार कर सकें और आने वाले टीचर्स को तैयार कर सकें फॉर द इंडिया दैट वी ऑल आर एनविजनिंग। अब इसमें हमने ये तो डिकोड कर लिया कि हमारा टॉपिक व्हाट टीचर्स शुड नो इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज यहाँ से टीचर्स को क्या ऑब्जेक्टिव्स मिल गए हैं जिससे वो सीखना, हमारे लर्निंग आउटकम्स बेसिकली हमने आपको बता दिए हैं। बट नाउ लेट्स डिकोड द टॉपिक इवन फर्दर, टर्म बाय टर्म। अब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब रोबोटिक्स को समझते हैं पहले कि रोबोटिक्स होता क्या है। और हमने रोबोट वर्ड तो बहुत सुना हुआ है, बट लेट्स ट्राई टू डिफाइन रोबोटिक्स। ये रोबोटिक टर्म डिराइव तो रोबोट से ही हुआ है। सो पायल मैम, आई वुड लाइक टू कम हियर एंड आस्क यू दिस थिंग कि रोबोटिक्स की डेफिनेशन क्या है। क्या ये रोबोट से ही संबंधित है जो हम देखते थे कि जापान ने बनाए हैं, किसी और कंट्री ने बनाए हैं, वो मशीन का एक फिगर है और आपके सारे काम कर रहा है। इसके हिस्ट्री और ओरिजिन पर भी थोड़ी बात करेंगे। Okay, so नमस्कार to all the teachers joining us from across India। अभी जैसे हरप्रीत जी ने कहा कि जापान में कोई एक रोबोट यूज़ हो रहा था जो सारे रजिस्टर्स फिल कर रहा था। दैट इज़ द क्यू टू योर क्वेश्चन। रोबोटिक्स को जब डिफ़ाइन करना है, अभी आप स्लाइड पे इनके टेक्निकल डेफिनेशंस, ईयर, साइटेशंस आप देख सकते हैं। बट एक सिंपल बात कहना चाहूँगी दैट when we talk about robotics, जब आप स्कूल में होते हैं, रोबोटिक्स जो हैं आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स वाया डिटेक्शन ऑफ इमेज जो आप हाथ से लिखते हैं
500 बच्चे, 50 बच्चे, वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जब आप दूसरी चीज़ देखते हैं एग्जामिनेशंस, आप जो एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन शीट्स करती हैं, वो रोबोट अगेन इमेज डिटेक्शन के द्वारा AI के साथ कैन डू इट ऑटोमेटिकली। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट these two questions that we've given you, जो ये डे टू डे की बात होती है। थर्ड वेरी वेरी सिंपल थिंग कि जब आपकी क्लास ख़त्म होती है, कंक्लूड होती है, तब एक घंटी बजती है। अब वो पिछले जब हम जाते हैं 10 साल पहले, 15 साल पहले, या कुछ गाँव में अभी भी ये होता होगा जब वो टंग करके ज़ोर से घंटी बजती है, पर अब वो ऑटोमेटेड होती है। वो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट वो भी रोबोटिक्स और AI है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली, हम जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना ऑटोमेटिकली, बस वहाँ पर वो रोबोटिक्स और AI का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा डेफिनेशन वहीं आ जाता है। और अब मैं टीचर्स को ये भी कहूँगी, आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए कि अगर आप रोबोट इमीडिएटली यूज़ करना चाहेंगे अपने टीचिंग इंटरवेंशन में, वो कैसे यूज़ करना चाहेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन डाल सकते हैं कमेंट्स में, तो हम आपको लाइव आंसर देंगे कि ये या तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, या अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। और ये तो हमने समझ लिया कि रोबोटिक्स जो है ये कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन पायल मैम, वो घंटी बजाने का भी अपना एक मज़ा होता था क्योंकि मैंने काफ़ी बार घंटी बजाई है पीरियड ओवर होने पर। लेकिन चलिए अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं कि रोबोटिक्स जो हमने डिराइव किया टर्म रोबोट से, ये रोबोट्स का एवोल्यूशन हुआ कैसे, इनकी ज़रूरत कैसे पड़ी? तीन मेन चीज़ें जो हैं उन पर गौर करते हैं। सबसे पहला है, हम काफ़ी सारी टास्क्स करते हैं डे टू डे जो होती हैं, जो बहुत रेपिटेटिव होती है, जो हमें बार बार एक ही टास्क करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा, घर में होंगे 5 लोग, हमें बनानी पड़ेंगी 25 रोटियां। दैट इज रेपिटेटिव। ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी 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 सिंपल एग्जाम्पल। Then the second task that I'm talking about can be something which is dangerous. ठीक है, अभी हमारे एक छठवीं कक्षा के बच्चे ने, जो एक रूरल स्मॉल टाउन से हैं, 2000 ऑलमोस्ट लाइक 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पुणे, ओके, फल्टन करके एक जगह है, वहाँ पर एक छठी क्लास के बच्चे ने बनाया एक बॉम्ब डिफ्यूज़र रोबोट। ओके, एंड वो जो रोबोट उसने बनाया है वो एक हैवी टेरेन रोबोट इस तरीके से बनाया कि वो रॉक्स के अंदर, अंडरग्राउंड, जहाँ गैस हो, जहाँ हार्मफुल लेट्स से देयर इज हॉट कोल, देयर इज हार्मफुल गैस, बट इन सब जगहों से जाकर वो रोबोट बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता है। ओके, सो सेकंड इज द थिंग विच वी आर लुकिंग एट इज डेंजरस। एक आपके रेपिटेटिव टास्क आसान कर देता है, एक आपके डेंजरस टास्क जो है वो सिंपल कर देता है। एंड थर्ड एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट इज डूइंग टास्क्स विथ perfection. Okay, we always say to err is human. If there is, if we don't have an error, how is it human? And that is the beauty of being a human being. Okay, and the beauty of being a robot with artificial intelligence is that there is no scope for error at all. So जैसा मैंने कहा कि आपको जो है, जो actual definitions, factual data, वो हम PPT पे दिखा रहे हैं, but उनको सिंप्लीफाई कैसे करना है इज़ वॉट वी वुड टॉक टू यू इन प्रैक्टिकल डे टू डे एग्जाम्पल। सो आपको जो भी सवाल होंगे आप वो चैट में डालिए, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और हम ये सेशन को बहुत इंटरैक्टिव बनाना चाहेंगे। जैसे हमने कहा कि PPTs आपके लिए अवेलेबल होंगी, हम कुछ छात्रों ने जो रोबोटिक्स और AI बनाए हैं उनके भी वीडियोज़ दिखाएंगे। हम आपको ये एक डेमो भी दिखाएंगे कि अब क्लासरूम में अगर आपको एक लेसन प्लान क्रिएट करना है तो आप वो AI रोबोटिक्स के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो ये अभी हम आगे की स्लाइड्स में दिखाएंगे। राइट, तो हमने ये समझ लिया कि रोबोट्स क्या हैं, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, रोबोटिक्स इसकी कैसी ब्रांच, इसमें हमें क्या समझने को मिलेगा, और साथ साथ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी व्हेन वी ऑलरेडी हैड इनफ लेबर फोर्स, क्योंकि कुछ रिपीटेटिव टास्क थे, एरर होने के चांसेस थे, कुछ डेंजरस सिचुएशंस और एक्यूरेसी प्रिसिशन हमें चाहिए, तो हमने रोबोट्स का यूज़ किया।
अच्छा, ये तो मैम चलिए आपने एक एग्जांपल दिया, डेंजरस है तो माइंस हो सकती हैं, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज हो सकती हैं, आपने कहा रोटियां बनानी तो हो सकता है बड़ी बड़ी ऐसे किचन्स होंगी जहाँ पर इतनी ज़रूरत है। और बिल्कुल, गुरुद्वारे में अगर आप देखेंगे आजकल गुरुद्वारे और मंदिर में जहाँ पर लंगर प्रसाद चलता है, लंगर जहाँ है, बस वो ऑटोमेटिकली रोटियां बन रही हैं, यू नो दे जस्ट वो आटा भी गूंद लेते हैं ऑटोमेटिकली, वो बड़े बड़े मशीन्स आ रहे हैं एंड एवरीथिंग इज डन सो एफिशिएंटली। यू डोंट नीड 100 पीपल टू डू वन particular task which is a subset of 10 tasks. Those 10 people can then do human interaction, because एक चीज़ जो रोबोट करने की बहुत कोशिश कर रहा है वो है उन्हें कॉग्निटिव यू नो स्किल्स लाने हैं, इमोशनल स्किल्स लाने हैं, EQ IQ की जब हम बात करते हैं, बट वो इतना आसान नहीं होता। एक टीचर समझ पाएगी ये बच्चा क्यों रो रहा है, पर ये रोबोट वो इमोशन नहीं समझ पाएगा। सो लाइक यू सेड दैट यू नो वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग विद परफेक्शन एंड द वन स्पेशल थिंग दैट द टीचर ब्रिंग्स इन इज दैट EQ बना। इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल द टीचर्स आउट देयर। रोबोट्स आपके इमोशंस नहीं समझ रहे, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यहाँ ज़्यादा ज़रूरतें मैंने देखी है मास लेवल पर मुझे नज़र आ रही है। एज अ लेमैन, एज अ कॉमन पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मेरे लिए रोबोट्स का क्या यूज़ है या मेरे जैसे लोगों के लिए? हमने ना अगर मैं ऑनेस्टली एक आंसर दूं आज, मुझे ऐसा लगता है हमने ये जो टर्म्स हैं इन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से हमने, जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सच में जब 10-15 साल पहले मैंने भी सुना था मुझे लगा था ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है जी। अब परसों मैंने एक जो टीचर हैं रूरल विलेज में पढ़ाती हैं, उन्हें मैंने पूछा कि मैम आप बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कहते हैं हमें तो सब पता है, ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एंड I was truly amazed that she's using ChatGPT, but for her, ChatGPT is artificial intelligence. जैसे हम हमेशा कहते हैं, लाइक हमें अभी भी हम सुनते हैं जो कहते हैं लोग इसको जेरोक्स कर लो। जेरोक्स क्या होता है? जेरोक्स तो भाई मशीन का नाम है, इसको फोटो कॉपी करो, यू नो मेक दिस एज अ कॉपी ऑफ दिस particular thing. It's photocopy, it's not Xerox. But it's amazing how everyone is relating, even in the rural you know areas, they are relating what is artificial intelligence. भाई वो तो ChatGPT है, हम क्वेश्चन पूछते हैं हमें आंसर मिल जाता है, हमारा काम कम हो गया। So it's amazing कि एटलीस्ट किसी माध्यम के द्वारा ये इतना पॉपुलर हो रहा है। बट लाइक आई सेड कि ये जो टर्म्स है, रोबोटिक्स भी देख लीजिए, हमें या तो ऐसे एक इमेज है कि यू नो ह्यूमन जैसा एक ह्यूमनॉइड होगा जो चलेगा, खाना सर्व करेगा, जो आजकल काफ़ी कर रहा है। दैट इज़ आवर माइंडसेट। बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, आपकी ATM मशीन्स जो हैं दैट इज़ ऑल्सो लाइक वी से ऑटोमेटिक। आप उसमें कार्ड डालते हैं, पिन कोड डालते हैं, विच मीन्स लॉजिकल स्टेप्स इनपुट करते हैं, आपका आउटपुट होता है बैंक बैलेंस या मनी। दैट इज़ how we have decoded robotics in you know back in the days. फिर हम Google Maps जो यूज़ करते हैं, जब वो Google Maps कहता है I am recalibrating और I am recalculating the route to avoid traffic, to avoid road closures, जब ये Google आपको Maps जब बताते हैं, that is again intelligence, that is again robotics. So right. This is how I would you know simplify it. Metro, अभी हम जब मेट्रो यूज़ करते हैं, आपकी जो मेट्रो टिकट्स आप खरीदते हैं उसे आप यू नो मशीन में डालते हैं, फिर आपको एंट्री मिलती है। AFC गेट्स हमारे yes बिल्कुल, यू नो दैट इज एज सिंपल एज यूजिंग रोबोटिक्स इन डे टू डे लाइफ। एब्सोल्युटली, हमारे AFC गेट्स हैं, हमारी वेंडिंग मशीन्स हैं। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम ऑलरेडी रोबोट्स का यूज़ कर ही रहे हैं इन सम और द अदर वे। हमारे एक परसेप्शन बना हुआ वो ह्यूमनॉइड ही होएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अब जब हमने ये समझ लिया कि डेली लाइफ में एज अ कॉमन पर्सन ऑलरेडी हम उनका यूज़ कर रहे हैं, अब बात आती है रोबोटिक्स इन एजुकेशन की। तो एजुकेशन में अब रोबोट्स कैसे होंगे? क्या वो मेरा स्कूल बैग उठाकर चलेंगे? एक्चुअली वो भी कर देंगे। Okay. और एक और चीज़ कर सकते हैं, वो शायद आपको स्कूल बैग ही ना ले जाने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज यू नो लैपटॉप्स या टैबलेट्स के द्वारा ही बच्चे सीखेंगे। बट नहीं, हम स्क्रीन टाइम जो है ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए प्रोवाइड ना करें, इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा यू नो दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। सो टू आंसर योर क्वेश्चन,
व्हेन वी से कि बच्चे को लेट्स से स्टूडेंट को ज्योमेट्री सीखनी है, टीचर को ज्योमेट्री सिखानी है, एक 90 डिग्रीज का एंगल कैसे बनाया जाए, टीचर बनाएंगी ब्लैक बोर्ड पे, बच्चे बनाएंगे क्लास में, उसे बुक में ज्योमेट्री बॉक्स खोलेंगे, वो निकालेंगे निकालेंगे टूल, अपना फिर notebook में बनाएंगे। या- ठीक है, ये एक रेगुलर क्लास है। पर आप सोचिए अगर ये टीचर ने दिखा दिया उन्हें इंटरैक्टिव पैनल पे, या अगर इंटरैक्टिव पैनल भी नहीं है, एक गांव के स्कूल की बात करते हैं, टीचर ले गई उन्हें बाहर ले गई और उन्होंने उनको स्टोन्स, स्टिक्स, ब्रिक्स के द्वारा दिखा दिया ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री। वो जो बच्चों की स्माइल होती है दैट इज प्राइसलेस बिकॉज दे हैव लर्नड ज्योमेट्री बाय डूइंग इट, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कुछ बच्चे लिख कर समझते हैं, कुछ बच्चे सुनकर समझते हैं, बट there is a maximum percentage of children that understand by doing it, and जैसे हम कहते हैं ना in jobs we say on job training. ऑन जॉब ट्रेनिंग इज़ नथिंग, लर्निंग बाय डूइंग। यही अगर हम स्कूल एजुकेशन में जल्दी ले आएँ, टीचर भी खुश बिकॉज बच्चे खुश हैं, द इंटरेक्शन, द एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ रियली हाई। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे एक वीडियो जहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट ने रोबोटिक्स प्रोटोटाइप जो है अपने क्लास में अडेप्ट करके कैसे एक प्रोटोटाइप बनाया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी। जी, इसलिए पर हम हमारे कई लोगों को जुड़ना होगा। ये ब्लॉक को इसको डिटेक्ट करता है। यहाँ पर जैसे कि मैं खड़े रह रही हूँ, डिटेक्ट कर रहा है, मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे कि मैं नीचे मूव होगी वैसे ही ये रोबोट भी नीचे मूव होगा। जैसे कि ऊपर मूव होगी तो ये रोबोट इसलिए नीचे ऊपर की तरफ मूव होगा। हमने कुछ अपने रोबोटिक और आर्डिनो भी लगती है सर्वो ये इस रोबोट को इस प्रकार से हमने यूज कराया है। अब ये रोबोट मुझे डिटेक्ट कर रहा है, अब ये रोबोट मेरे फ्रेंड्स समाने को डिटेक्ट करेगा। मेरे फ्रेंड शाम को डिटेक्ट करेगा। well, that's amazing, that's indeed amazing। और अब मुझे तो समझ आ रहा है कि कैसे रोबोटिक्स सिर्फ स्कूल बैग नहीं उठाएंगे बल्कि बहुत कुछ हमें करने का मौका देंगे। जैसे मैंने बताया, इंगेजिंग एंड जॉयफुल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा हमें, राइट? यस, बिकॉज जैसे हमने कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग गोज़ अ लॉन्ग वे फॉर अ स्टूडेंट टू रिमेंबर कि जब वो कोई बटन चलाते हैं, किसी चीज़ को उन्होंने फिक्स करी है और बटन स्विच ऑन करके जब वो चीज़ चलती है, द जॉय एंड द रिमेम्बरेंस मसल मेमोरी ऑफ अ चाइल्ड इज़ मच मोर इम्पैक्टफुल इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू से। एंड जैसे कल बेहरा जी ने भी कहा था कि हम NEP 2020 के द्वारा रोट लर्निंग से थोड़ा हटकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के दिशा में हम जा रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वीडियो स्टेटेड, वेयर द चिल्ड्रन डिडंट हैव टू मेमोराइज इट, दे हैड टू अंडरस्टैंड बाय फेलियर कि कहीं अगर उन्होंने 3-4 बार वो एक पर्टिकुलर कोड चलाया और वो रोबोट नहीं चला, या जिस प्रोजेक्ट या प्रोटोटाइप को वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे वो सही दिशा से नहीं हुआ, तो एक फेलियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। ओके, एंड जो लाइफ स्किल्स हैं वो बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फेलियर, टीम बिल्डिंग के द्वारा सीखते हैं। और टीचर्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स वो टीचर इम्पार्ट करती है। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि पायल ने कहा कि किस तरीके से बच्चे इंजॉय करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो अगर हम नर्सल में देखेंगे एजुकेशनल जो रोबोटिक्स है या रोबोटिक्स इन एजुकेशन है, ये सारे टूल को अगर हम एजुकेशन में लेके आ रहे हैं, तो हालांकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आज से 20 साल पहले हम ये रोबोटिक या रोबोट किट बनाना हम हायर एजुकेशन या इंजीनियरिंग डोमेन में लेके आते थे। तो जब बच्चे +2 के बाद में इंजीनियरिंग फील्ड ऑप्ट करते हैं, फील्ड में जाके फिर वहाँ पर सीखते हैं कि रोबोट बनाना कैसे है। पर अगर हम देखेंगे हमारी जो ज़रूरतें ही हमें काफ़ी सारी चीज़ों इनोवेट करने में मदद करती है।
तो जब बच्चे छोटे छोटे स्किल जो है स्कूलों में देख रहे हैं, आसपास में देख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या हम इंतज़ार करेंगे कि बच्चे +2 के बाद में कॉलेज में जाए, उसके बाद में वो सीखें? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रोबोटिक जो एजुकेशन में हम लेके आ रही है मल्टी डिसिप्लिन इन एरिया के स्टूडेंट्स दैट इधर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, इधर फ्रॉम द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, दैट इंटरडिसिप्लिन इन नेचर। तो हमारी जो कंसेप्ट पहले थी कि हम ग्रेजुएशन में जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसमें आपकी साइंस होगी, फिजिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होंगे, तो ही आप रोबोट बना सकते हैं। जबकि अभी जो बच्चों में जब इतने सारे स्किल्स आ गए हैं तो हम इसको वो सारे हार्ड एंड फास्ट हमारे जो सब्जेक्ट के जो डोमेन है उससे हम बियॉन्ड जाएंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, आसपास के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेली लाइफ में। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को हम एक साइंटिफिक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में हम एक रोबोट बना सकते हैं, जिसके लिए बच्चों को एक हार्ड एंड फास्ट प्रोग्रामिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कंसेप्ट के साथ में बच्चे वो प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। तो जो एजुकेशन में अगर हम रोबोट का या रोबोटिक का जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं तो हम बच्चों को नर्चर कर रहे हैं अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग में, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनकी साइकोमोटर डोमेन है, और जैसे हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, तो ये टेक्नोलॉजी को हम हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में, हमारी ह्यूमनिस्टिक जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में ये सारी चीज़ों को हम कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बच्चों को वो सिस्टमेटिक थिंकिंग, वो डिज़ाइन थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें इनकलकेट करना है, वो नर्चर करना है। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग स्कूल लेवल से हम शुरू कर सकते हैं। मैम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस कॉन्वर्सेशन से डिराइव किया, मैं इसको रीटरेट करना चाहूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। डेफिनेटली हमारा स्क्रीन टाइम कम होगा, हम नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम लर्निंग बाय डूइंग से समझेंगे, बिकॉज कहते हैं यू मेक मी परफॉर्म एंड आई लर्न इट फॉर एवर। साथ ही साथ आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जस्ट बिकॉज हमने साइंस में इतने मार्क्स स्कोर नहीं किए हम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। लेकिन क्या पता पहले से अगर मेरे में स्किल होते चीज़ें डिवाइस करने के, मैं साइंस को जब अप्लाई कर रही हूँ तो उसको थियोरेटिकली भी ज़्यादा अच्छे से समझती। लेकिन ये 360 डिग्री चेंज अब लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर बच्चा यूनिक है, और मे बी आप बायोलॉजी में अच्छा नहीं, पर आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आपने कंप्यूटर्स में अच्छा नहीं करा तो आप फिजिक्स भी आगे ना पढ़ पाएँ, इट्स एन इनजस्टिस टू स्टूडेंट्स। वो नहीं होना चाहिए। हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, आई थिंक हम अपने, हमारी कंट्री एग्रेरियन कंट्री है, हम सर्विस सेक्टर में आगे, मैन्युफैक्चरिंग का जो ये गैप है, जो ये चीज़ें इंजीनियरिंग डिवाइसेस तैयार करना या फिर हमें मशीन लेवल पर ज़्यादा बड़ा काम करना, वो इस चीज़ से उस गैप को हम ब्रिज कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर हम कम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने रोबोटिक्स के बारे में आई थिंक इन अ नटशेल बहुत कुछ समझ लिया, हमने सारे उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक में, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? चैट जीपीटी किसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी के लिए ऑफ कोर्स अपने वॉइस कमांड दी, आपकी कमांड्स पूरी हो गई मोबाइल में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ नहीं कर सकता। प्रॉम्प्ट देते हैं, मैं रिजल्ट देता है, लेकिन वो तो मैं पहले भी कर सकती थी। मैं रिसर्च करके अपनी स्क्रिप्ट बना लूँगी, मैं रिसर्च करके कुछ अपने सॉल्यूशंस ढूंढ लूँगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम्पीट नहीं कर सकती, तो इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड लेट्स सिंप्लीफाई दिस। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यूट्यूब, ठीक है, बहुत पॉपुलरली यूज्ड यूट्यूब चैनल, अब और उसको जोड़ दीजिए आप एलेक्सा से, ठीक है, विच मीन्स आप वॉइस बेस्ड कमांड्स दे रहे हैं। तो ये दो बातें हो गई। पर जब आप अब मेरी जो दादी हैं 75 ईयर्स की हैं, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति गीत सुनने, तो उन्होंने कहा कि चलो सुंदरकांड का पार्ट सुनना है। जब वो भक्ति गीत चले तब दूसरे दिन ऑटोमेटिकली सजेस्टिव्स आ गए कि अब हनुमान चालीसा, अब जो उससे रिलेटेड भक्ति गीत थे वो आ गए। दैट इज व्हाट वी से इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने जो डेटा फीड करा है, अब उस डेटा के आसपास आपको कैसे हेल्प किया जाए इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेल्स यू। एंड ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से भी आपको एक्सप्लेन किया है जी। जब हम कुछ टाइप करते हैं, लेट्स से फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं और वो स्पेलिंग अगर गलत है, फिर वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, किसी और लैंग्वेज में हो, तो एक चीज़ होती है ऑटो करेक्ट, वो अपने आप जो है आपका स्पेलिंग ठीक कर देते हैं।
that is also in a way artificial intelligence, because the device knows what you're trying to type because you've given it data before, okay? And अगर आप जल्दी में टाइप कर रहे हैं that you know I am running late, okay, वो late जो होता है LATER हो सकता है, but then it you know sort of changes us back to what you're trying to say. So these are the most simple things. जब अभी you know काफ़ी teachers जब हम स्कूल में जाते हैं, सेमी अर्बन रूरल स्कूल्स में जाते हैं, टीचर कहते हैं कि हम बहुत टेक्निकल नहीं हैं, अब आप रोबोटिक्स, AI, STEM, IoT, डिज़ाइन थिंकिंग, इतने बड़े बड़े नाम हैं, अगर हम नहीं इसे समझ पाएंगे हम बच्चों कैसे पढ़ाएंगे? तो हमने टीचर्स को सिंपली पूछा, मैं कहा आप ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं जब आपको कोई लेसन प्लान है अपना, उसको लेट्स से इंग्लिश से हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, किसी लैंग्वेज में आपको यू नो उसे ट्रांसलेट करके बेहतर समझना है डिलीवरी, बच्चों को डिलीवरी से पहले? कहते हैं हाँ हम यूज़ करते हैं। आप एप्स यूज़ करते हैं जिसमें आप यू नो वॉइस कमांड्स दे रहे हैं और वो टाइपिंग अपने आप हो रही है? कहते हैं येस वी डू दैट। And our answer was as simple. You were already using AI and robotics. And they had a big smile on their face that yes. And then हम teachers को हमेशा कहते हैं that if you can manage a class of 30, 40, 50, 60 students, you are the champion robot in yourself. So who was that you know intelligent human being who first devised AI? अगर हम उसकी हिस्ट्री बारे में थोड़ा सा जान ले तो. So अगर हम you know हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, so we are going as back as 1956 and you know a gentleman called John McCartney, which you know said that there are scientists, they say that you know computer can solve the problems, it can understand the language better, and कुछ एक ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं जो वो एक डिफरेंट तरीके से इनिशिएट कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि लेट्स ट्राई एंड पुट दिस ऑल टुगेदर एज अ कंबाइंड एफर्ट एंड लेट्स गिव इट इंटेलिजेंस। एंड हाउ डज इट बिकम इंटेलिजेंट? अब एक सिंपल सी बात है, कहते हैं आप बुक्स पढ़िए एंड द मोर बुक्स यू रीड द मोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट। फिर हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये हम how do we exhibit this is because we've read books, we've had data, and at some point we've had the ability to convert that data from text that you read into speech. And that's exactly what artificial intelligence done, the history and origin, to make it simple, to make teachers, humans work easier. It's like a best friend to have, कि ये आपको सपोर्ट करेगा when you are जैसे you know 500 असेसमेंट शीट्स जब टीचर ने एग्ज़ाम के बाद you know आपको वो असेसमेंट शीट्स जो हैं चेक करके बच्चों के रिजल्ट्स जो निकालने होते हैं, imagine if that is done in 5 minutes. The teacher can then spend time doing creative things like planning a lesson outside of the classroom. ऑफ कोर्स लेसन प्लान कर सकते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा पर्सनल टच प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आज इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि यहाँ पर हमें एक 1-to-1 कम्युनिकेशन जो मिसिंग हो रहा है उसके लिए भी जगह चाहिए, और वो टाइम तभी मिलते हैं जब टीचर्स को बाकी जगह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब हमने AI तो समझ लिया, लेकिन जब AI और रोबोटिक्स ये दोनों साथ में मिलते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनता है, कैसे ये एंगेजमेंट को सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे इसे इंटरैक्टिव तरीके से और इंगेजिंग तरीके से यूज़ करते हैं? So, एक छोटा वीडियो दिखाना चाहेंगे पहले हम यू नो टीचर्स को, कि अगर आपको एक लेसन प्लान क्रिएट करना है, जैसे हरप्रीत जी ने कहा कि ये स्टूडेंट्स इसको कैसे एंगेजिंग, यू नो हाउ कैन द एंगेजमेंट रेशियो बी एट द पीक, ओके। तो एक सिंपल वेब बेस्ड यू नो सर्च बार है, उस सर्च बार में हम एक छठी कक्षा का पहले तो एक हिस्ट्री का लेसन ले लेते हैं, उसके बाद कबीर के दोहे हिंदी लेसन ले लेते हैं, और देखते हैं कि टीचर उसमें एक सिंपल कमांड डालेंगे, वो कमांड डालते ही एक लेसन प्लान कैसे क्रिएट होगा। अब ये लेसन प्लान जो है ये बहुत ही डायनामिक लेसन प्लान हो सकता है, क्योंकि हमने जो डेटा इनपुट कंप्यूटर को दिया है वो उस तरीके से
वो लेसन प्लान क्रिएट करेगा। आपका जो डेटा सर्च हिस्ट्री होगा, डॉक्टर बॉबी का जो डेटा हिस्ट्री होगा, वो आपके एक कैरेक्टरिस्टिक को समझ कर कि आप ये कैसे सेशन डिलीवर करना चाहेंगे, इसको कैसे एंगेजिंग बनाना चाहेंगे, उस तरीके का जो है लेसन प्लान ये क्रिएट करेगा। सो अभी जब हम आपको दिखाएंगे वो बहुत ही जेनेरिक है, आप देखिए और आप भी ट्राई करिए एक लेसन प्लान क्रिएट करने का। इफ़ नॉट लेसन प्लान, इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज tell me something new for my class tomorrow, which is an English class, Hindi class, science class, grade 6 chapter 5. So yes, अभी एक वीडियो हम प्ले करना चाहेंगे जी। लेसन प्लान फॉर हिंदी सब्जेक्ट फॉर क्लास ग्रेड 6 ऑन कबीर के दोहे। So I'm just pasting this prompt which I have created here. So create a lesson plan in Hindi for class 6 NCERT on कबीर के दोहे। Here you can see your plan will get created within 1 minute. Including the time slots for each topic. वाओ, तो इसमें हमने देखा कि वो पूरा लेसन प्लान हमारे सामने आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गई, कंक्लूजन आ गया, असेसमेंट भी हो गई, होमवर्क भी दे दिया और ये काम चुटकियों में हो गया टीचर्स के, जो उनको शायद पूरा 1 या 2 दिन लगाने पड़ते पूरे चैप्टर को स्टडी करके, फिर उसको थोड़ा कस्टमाइजेशन उसका करना पड़ता कि हर बच्चे के हिसाब से कंटेंट वो डिलीवर कर सकें। अब ये बहुत अच्छी चीज़ बताई कि स्पीडीली हमारे पास काम हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। प्लस मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि एआई के सब सजेशंस मिलते हैं, तो अननेसेसरी नॉइज़ है उसको हम हटा सकते हैं, मुझे बस यही देखना है, मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला कि टीचर्स ऑलरेडी एआई यूज़ कर रहे हैं, आपने बात किया जो उनको पता भी नहीं होता, थोड़े और एग्जांपल्स हमें दीजिए कैसे टीचर्स ऑलरेडी अपनी लाइफ में एआई का यूज़ कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू टीचिंग लर्निंग। हालांकि हमने इस वीडियो में तो देखा ही है, फिर भी और क्या क्या वो चीज़ें यूज़ करते हैं लॉजिकली, हम देखें कोई रैशनल इसके पीछे हो या एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ भी कॉन्सेप्ट और सिखाने के लिए जो डेली लाइफ में ऑलरेडी वो उसका यूज़ करते ही जा रहे हैं। क्योंकि मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, जब आपने कहा कि हमें टेक्स्ट कोई चाहिए, हमें ऑटो करेक्ट का हमें एक फ़ीचर मिल जाता है, लेकिन फिर टीचर का रोल यहाँ कहाँ आता है कि भाई आपको स्पेलिंग्स याद नहीं रहेंगी, हमें तो ऑटो करेक्ट मोबाइल दे ही रहा है, एआई दे ही रहा है, तो क्या यहाँ पर टीचर के लिए चैलेंजिंग पोजीशन नहीं है? फिर किस तरीके से वो एआई को डेली लाइफ में ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि मेमोराइजेशन जो हो रही है, रोट मेमोराइजेशन ना हो, लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग हो और करेक्ट मेमोराइजेशन हो, क्योंकि हम NEP 2020 के हिसाब से क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग इनको भी डेवलप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हम जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टेटेड दैट द जॉब्स इन 2030 विल रिक्वायर 10 टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्किल सेट्स एंड 10 लाइफ स्किल सेट्स। तो अगर हम 10 टेक्निकल टॉप स्किल्स ले अगर, तो रोबोटिक्स, AI, IoT, डिज़ाइन थिंकिंग, स्टेम एजुकेशन, ये ऑलरेडी जो पॉलिसी से मैप्ड है, ये एक टॉप 5 to 6 स्किल्स हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स, आपने जो कहा, एडिंग टू दैट टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी लाइफ स्किल्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि अगर 2030 यू विश टू बी एम्प्लॉयबल, यू नीड टू हैव बोथ these skill sets very, very strongly. And I think as a teacher, not just in India, but in any part of the world, ये जो teachers हैं, ये एक passion जो होता है ना, एक that is the first thing that a teacher has. बच्चों को सिखाना is their passion. And therefore, with AI or without AI, every teacher has a unique quality to teach a particular subject to the student. For example, जैसे अभी हमने spellings की बात करी, जब आप एक बालवाड़ी टीचर को देख ले, जब वो phonics सिखाती हैं, तो वो बोलेंगे न NEP, व water, प पानी। So और ये हमने देखा है, हम हैदराबाद के एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल जो था, वहाँ पर हम रोबोटिक्स AI लॉन्च कर रहे थे, एंड हम एक नर्सरी क्लास में गए, जहाँ आई थिंक 3 to 4 years के जो होंगे वो बच्चे होंगे, उनके हाथ में थी स्लेट और चॉक जी, ओके, और वो स्लेट और चॉक से उन्होंने ऑलरेडी ABCD 1 2 3 ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं टू द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम
that is Finnish education system, that says that till 7 years the child doesn't need to read, write, learn. Okay, but the Indian education system works in a slightly different way, and to be able to see that वो 3 साल 4 साल के बच्चे ने already वो लिखा हुआ था, because इतने सुंदर तरीके से टीचर ने वो explain किया हुआ था. So if we compare ourselves to a 6-year-old in the Western country who may yet not know how to write versus we do, but it also we are coming up the learning curve when we talk about learning by doing, which the people in the West have already in a way established it. So I would go back to your answer and say that ki our teachers have their own particular way of making sure that the children learns it, memorizes it in its own beautiful way, with or without rote learning. And now what AI does is, हम कहते हैं कि robotics is the body, AI is the intelligence, and you as a teacher, you are the wisdom behind it. वाओ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा. और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉइंट और भी हाईलाइट कर सकते हैं जो कल मैंने सीखा, क्योंकि हम बात करते हैं इंक्लूजन की और हम बात करते हैं डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स की और गिफ्टेड स्टूडेंट्स की. आई थिंक उनके लिए जो कंटेंट को हमें पर्सनलाइज करना पड़ता है, तब भी एआई बहुत हेल्पफुल है. और यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि स्पेलिंग्स हमें याद करनी चाहिए, आइडियली फ़ोन नंबर्स हमें याद रखने चाहिए, लेकिन हर कोई तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास डिस्लेक्सिक स्टूडेंट्स भी हैं, डिस्ग्राफिया भी है, स्टूडेंट्स को डिस्कैल्कुलिया भी है. क्यों फोर्स करना है उनको लर्न करने के लिए? जिसमें वो अच्छे हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें वो अच्छे नहीं हैं या अभी नहीं कर पा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेट मी पुट इट दिस वे, वो बाद में कर लेंगे, फिलहाल उनके सपोर्ट के लिए एआई है ही. सो अभी आपने बोला कि रोबोटिक्स और एआई दे वर्क इन टैंडम विद ईच अदर, एंड टीचर इज द विजडम ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द सीन. सो हम इसके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. सो रिलेशनशिप क्या है फिर रोबोटिक्स और एआई का? क्या ऐसा है कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है, ये एक बैलेंस की तरह है कि दोनों को हैंड इन ग्लव की तरह काम करना है? हैंड एंड ग्लव, येस, एंड लाइक वी से कि मल्टी डिसिप्लिनरी अगर हम अप्रोच देख लें, ओके, तो ये ईदर और हो सकता है. ठीक है, आप या तो एक एआई में प्रोजेक्ट बना सकते हैं कोडिंग के द्वारा, बट अगर आपको कुछ चलाना है, कुछ जैसे बहुत बच्चे ने बनाए हैं वेस्ट सेग्रीगेटर रोबोट, कि हमारे यहाँ वेस्ट सेग्रीगेशन शायद नहीं हो पाता ठीक से, तो एक रोबोट वो वेस्ट सेग्रीगेट करेगा, ड्राई और वेट अलग अलग करेगा, एंड देन वो जो है एक वेस्ट सेंटर में जो है सेग्रीगेट होकर जाएगा. और वहाँ पर भी बच्चों ने काफ़ी पैशनेटली प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि ड्राई वेस्ट को हम अगर इस तरीके से मैन्योर बना सकते हैं, वो खाद हो सकता है प्लांट्स के लिए. जो वेट वेस्ट है उसको इस डिग्री पे बर्न कर सकते हैं कि ज़्यादा स्मोक नहीं आए, देयर इज़ लेस ऑफ पोल्यूशन एक्सेट्रा. सो एक आउटपुट गोल सोचकर ये सारे अप्रोच जो है अलग अलग यूज़ हो सकते हैं. लाइक वी सेड फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, कल हमने बात करी ऑटिज़म की, आज हम डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, राइट. एंड ये जो बच्चे हैं, we would say that when you look at their IQ level, and if their IQ level is monitored, it's much higher than a child who we call normal. Okay, and there is nothing there is no definition for normalcy like we say, but when we look at STEAM education, इसमें अगर आपने science, technology, engineering, arts and mathematics, arts के द्वारा ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, एंड इसको एक गोल ओरिएंटेड आउटपुट में कैन ब्रिंग इट इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे. अभी जो मैंने आपको वेस्ट सेग्रीगेटेड प्रोजेक्ट्स बोले हैं, एक रेड क्रॉस के प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं जहाँ डिफरेंटली एबल बच्चों ने ये 4 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. ये मुझे आपको बाद में बताना था, आफ्टर आई सेड दैट हाउ दीज चिल्ड्रन हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी टू ओवरकम what we called is differently abled. Right. And I think now it's time we can also play another video. Yes. जहाँ पर एक history lesson plan है. Okay. वो टीचर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो प्लान. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, अभी ये लेसन प्लान जो है वो आपको टेक्स्ट दिखाएगा, बट टीचर्स इसके अंदर ये भी इनपुट कर सकती हैं कि हमें डायग्राम्स दिखाइए, हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाइए, इससे रिलेटेड वीडियो लिंक्स दिखाइए. सो ये जो कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग आउटपुट्स ऑफ लेसन प्लान है, ये हम कल भी देखेंगे. कुछ हम जिन टीचर्स ने ऑलरेडी एआई रोबोटिक्स क्लासरूम में अडेप्ट किया है, जो गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं,
उनके हम वीडियोस देखेंगे कल. बट येस, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हिस्ट्री फॉर ग्रेड 6, हाउ हैव वी यूज्ड दिस पर्टिकुलर लेसन प्लान. All right. Today we will see how we can use AI for content creation for teaching materials or creating the lesson plan. So I'm going to use Copilot by Microsoft to create a lesson plan for sixth grade history chapter. So I will paste one prompt here which I have created earlier. So from the in earlier city chapter of grade 6 NCRT, create a lesson plan on Rappan civilization for 35-minute class. Now we will provide this prompt to our Copilot and we will see what it generates. So it has generated learning objectives, classroom flow, divided into the time slots like introduction, city planning, architecture for 10 minutes, like this. So we can generate the content for education within a minute. वेल ये बहुत इंटरेस्टिंग था. हिस्ट्री लेसन को ऐसे प्लान किया गया क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मोहनजोदारो हड़प्पन कल्चर बस चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिया, वो पता नहीं वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन ही नहीं पता आज तक. वो अब पता लग रही है जब मैं AI के वीडियोस देख रही हूँ. लेकिन मैं इसको और अगर क्लैरिटी से समझना चाहूँ, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली अभी स्कूल में नहीं हूँ, तो मैं रोबोटिक्स और AI के जो रिलेशनशिप है उसको एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. बट एज अ पेरेंट कह लीजिए, एज अ गार्जियन कह लीजिए, एज अ स्टेक होल्डर कम्युनिटी मेंबर कह लीजिए, मैं इस रिलेशनशिप को अगर और अच्छे से समझना चाहूँ कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपस में कैसे काम कर रहे हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट्स देने वाला है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इन नटशेल? एक्चुअली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम वील गो बैक टू आवर कोर फंडामेंटल्स विच इज़ लर्निंग बाय डूइंग. तो एक और वीडियो प्ले करना चाहेंगे जहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल के छात्र ने एक प्रोटोटाइप बनाया है टू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन robotics and AI, how do they work together? Okay. So we will just play this video for you now. This is my project, a robotic arm. I made this project for the people who lose their hand in an incident or in some other ways, and we will also be able to use this hand in those cases or in those areas where the people be able to use their own hands. And here in hardware part, I used mainly 4 components. Here, firstly, I used a OLED display to print the signals of the servo motors, and a Arduino Uno board as the main brain of my project. 5 servo motors to control the finger movement, and a LiPo battery to provide the power supply to our servo motors. And here in the software part, I used Arduino IDE to program the Arduino Uno board, and VS Code as the main code editor. Here I used Python programming language to program our project. And here in Python I used mainly 3 libraries. Firstly, I used OpenCV to open the camera, and second I used MediaPipe to detect the hand coordinates, and third I used PyFermata for the communication between the hardware and the software part. And I have also presented this project in the front of Honorable Education Minister of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, and in the robotics national championship and international championship, I have also presented this. Well, that's fabulous. और कहते भी है necessity is the mother of all inventions, and when there is AI, innovations come really handy और बहुत easily हम innovate कर पाते हैं और जो भी हमारी necessities हैं, जो भी हमारी requirements हैं, हम fulfill कर पाते हैं. और I think मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक young entrepreneur और entrepreneur of tomorrow, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ideas हैं जिन्हें आप shape दे सकते हैं, form दे सकते हैं, because we have robotics and we have AI. अब
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हमने डिस्कस कर लिया व्हाट टीचर्स शुड नो, और ये भी जान लिया कि एआई क्या है, रोबोटिक्स क्या है, हिस्ट्री कैसी वर्क कर रहा है प्रैक्टिकली डिफरेंट डोमेन्स में। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग होगी देखनी, तो शायद हम आगे भी देखेंगे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में जब टीचर्स लेसन प्लान करते हैं ताकि स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएँ, तो वो क्या क्या वो एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में बैठी हूँ, मुझे साउथ इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तो भी मेरे पास एआई की हेल्प से मैं ऐसे एलिमेंट्स अपने लेसन प्लान में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, जिससे मुझे वो लेसन प्लान खुद समझना और बच्चों को समझाना और ज़्यादा ब्यूटीफुल एंगेजिंग हो जाएगा। लेकिन अब इतना सब हमने जान लिया, पर ये जानना ही क्यों है टीचर्स को? व्हाई टीचर्स शुड नो? व्हाट तो हमें समझ आ गया, व्हाई का भी आंसर आप दे दीजिए डॉक्टर परवीन। Thank you, Harpreet. We had a lot of discussion about AI and robotic, and many teachers are now they are using, they are maybe planning the lesson plans, and they are using in their academic and non-academic activities, personal and professional learning, and even I think they are also using this technology for remedial classes. Yes. So now come to the robotic. Teacher might be wondering, अब हम robotic को अपने क्लास में कैसे लेके आएंगे? रोबोटिक या एआई कैसे हमारे जो लर्निंग है, हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस है, या बच्चों की लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट करेगा? क्यों ज़रूरी है ये टेक्नोलॉजी लेने की? बिल्कुल। आज से 5 साल पहले जब ATL को लेके आए, अटल टिंकरिंग लैब, आज से 10 साल पहले आई थिंक, तो जब हम ATL को लेके आए, सारे स्कूलों में हमें अटल टिंकरिंग लैब जब बनाना शुरू किए, और बहुत सारे स्कूलों में भी है, तो बहुत सारे स्कूल, आई थिंक हज़ारों में स्कूल है जहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब बन चुके हैं, और वो लैब एक्चुअली इनोवेशन लैब है। तो जब उस लैब में इनोवेशन करना है, तो इनोवेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? नहीं। तो जब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो हर बच्चों को क्यों ना हम मौका दें? Every student gets an opportunity to do innovation, either in their day-to-day life they are experiencing, हर दिन जो देख रहे हैं, जैसे पायल ने एग्जांपल दिया कि बच्चे देख रहे हैं कि कैसे हम सेंसर को यूज़ करके अपने इरिगेशन सिस्टम में अपने फार्मर पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं गार्बेज को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, प्रॉब्लम्स है, जो लोकल कंटेक्स्ट में बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे रोबोटिक की जो बात करते हैं, आई कि जब हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, तो जब हम इसको लोकलाइज करेंगे, कंटेक्चुअलाइज करेंगे, तो आसपास की प्रॉब्लम को टीचर समझ सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि यूएस में जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में अभी हमारे यहाँ दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले 10 सालों में हो सकती है। हो सकती है जो दिल्ली में जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि गांव में वो प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से होगी। तो जो दिल्ली में जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से हम गांव में उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग, तो हाउ वी विल use this technology to solve our problem. जैसे AI की भी हम बात किए, टेक्नोलॉजी की भी बात किए, रोबोटिक की, तो AI है क्या? It's nothing, it's a data. It's a lot of data that AI is filtering that one, processing that one, that is the systematic way they are processing that one। और आपकी जो क्वेरी है, प्रॉम्प्ट में आपने जो क्वेरी पूछा है कि मुझे ये बना के दे दो, तो इमीडिएटली वो प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे रहा है कि सी दिस इज द रिजल्ट, तो दिस आउटपुट इज देयर। So this processing, identifying the data, reading the data, analyzing the data, interpreting the data, is a time taking, and sometimes teacher and the students are unable to draw meaning from the data. That's right. So this time this technology is supporting that, teachers as a student. And teachers might be wondering, हमारे पास तो सिर्फ 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे में मैं ये रोबोटिक की क्लासेस कब लूँगा या कब लूँगी? मैं कैसे बच्चों को इसको एंगेज करूंगा? कितने आवर्स मिलेंगे बच्चों को एंगेज करने के लिए? सो दिस रोबोटिक इन एआई इज नॉट इज कम्प्लीटली फॉर्मल, we can go also for the non-formal. So we are here now, you are attending our program, this is a kind of non-formal. Yes. We are not forcing you to integrate this online training session in your classroom. True. So this is a formal as well as a non-formal. So we are offering this one in the form of you can do out of the classroom and out of the school. क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्कूल के बाहर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नॉन फॉर्मल टाइम भी चाहिए। एंड द सेकेंड इज पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव, यू कैन सी व्हाट द पेडागोजिकल अप्रोचेस वी कैन फॉलो टू इंटीग्रेट दिस रोबोटिक एंड एआई इन माय टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। So we are shifting, blended learning we are doing, and we see that constructivist approaches are there, and there is a lot of pedagogical approaches is there. If you will go to that NCF and NEP, and there's suggested so many pedagogical activity, that inquiry based is there, experimental based is there, Absolutely. experiential learning is there. Okay, so there are so many pedagogical approaches suggested. True. For adapting this AI and robotic, the personalized pedagogy is important, because this is vary from individual to individual.
इंडिविजुअल, लाइक दैट आपके पास एक नए आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेरे पास एक अलग आइडिया है। Absolutely. तो हम दोनों हो सकते हैं कि अलग अलग प्रॉब्लम को कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। तो दिस एआई एंड रोबोटिक दैट गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स एज वेल एज द लर्नर्स, डू इट बाय योरसेल्फ। आप खुद करो या फिर आप लोगों के साथ मिलके करो, क्योंकि बहुत सारे अभी हमने देखे कि एक बच्चे ने एक रोबोटिक किट को बनाया, हो सकता है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। So this is providing a individualized pedagogy, and we can say the personalized pedagogy. बिल्कुल। And this personalized pedagogy that we are adapting this one. So this is the pedagogical approaches we can follow. Then teachers might be wondering what is the philosophy behind this AI and this robotic. इसके पीछे क्योंकि हम टीचर जरूर सोचते हैं what is the idea behind this technology. Yeah. So we'll talk about that constructionist. That constructionist is that construction we are doing, we are making an object. हम सारी चीज़ को assemble कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं, उसमें हम अपने जो लोकल कंटेक्स्ट है, लोकल जो कंटेंट है, थ्योरी है, वो सारी थ्योरी को हम कैसे प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। ये सब। So that is a constructionist we can say, and connectionist we can say. Absolutely. And the next one is constructivism. We are constructing here. And practically we are performing that one. We are assembling lot of objects here and making a object functional. बिल्कुल। और उसको फंक्शनल करने के लिए हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो एआई की मदद से कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। जब एआई हम और आपको डेली वर्क रूटीन वर्क करने में सपोर्ट कर रहा है, तो ये आइडिया को हम एक जो बहुत सारे किट को असेंबल कर रहे हैं उसको फंक्शनल बनाने के लिए क्यों यूज ना करें। जी, बिल्कुल। दैट इज एरर फ्री, दैट इज एरर को रेक्टिफाई करना, उसको आप फिक्स करना टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एआई यहाँ सपोर्ट करेगा कि वो सारी चीज़ों को आप कैसे कम समय में फिक्स कर सकते हैं, उसको फंक्शनल या ऑपरेशनल बना सकते हैं। जी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो हम टीचर्स जो ये सोच रहे होंगे कि स्कूल के चार दीवारी में हम कितने इनोवेशन कर सकते हैं, और अक्सर हम नहीं कर पाते हैं वो चार दीवारी के अंदर इनोवेशन। तो ये रोबोटिक और एआई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना शुरू कीजिए। बिल्कुल। हमें वंस यू आर एक्सप्लोरिंग दैट वर्ल्ड बियॉन्ड द स्कूल, यू विल come to know about lot of things happening outside the school. Ma'am, you have so many ideas and we request you to kindly come and make your presence felt in all the forthcoming sessions. लेकिन अभी के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है and they say too many cooks spoil the broth, लेकिन AI में ऐसा नहीं होता because you get the information that's filtered and that's totally as per your prompt, जहाँ सारी creativity लाई करती है, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवीन, थैंक यू सो मच पायल मैम फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वंडरफुल एफर्ट्स फॉर दिस सेशन। और साथ ही साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दोनों ISL इंटरप्रेटर्स का और मेरी पूरी टीम का फॉर मेकिंग दिस सेशन अ सक्सेस एंड ऑफ कोर्स वेरी एंगेजिंग एंड जॉयफुल। सो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, आज हमने बात करी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट टीचर्स शुड नो। ये हमारे डे 2 का सेशन था। कल डे 3 के सेशन में हम बात करेंगे फ्रॉम चॉक टू कोड, व्हाई AI एंड रोबोटिक्स मैटर इन स्कूल एजुकेशन। सो और ज़्यादा सीखेंगे इसके बारे में, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। जो क्वेश्चंस आप हमें अभी नहीं भेज पाए ऑफलाइन भेज सकते हैं, email ID आपके पास है। बट फॉर द मोमेंट दिस इज close from my side for this particular session, but we have many forthcoming sessions for you, and we can have a program schedule also at 12 o'clock. Please watch our session on inclusive classrooms. Topic is right there in front of you. With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, signing off, and we'll join you shortly. Namaskar.